Hello students, welcome once again to Zenith Academy Online. Today we'll be doing part 2 of the chapter Stakeholders in Commercial Organizations, Commercial Studies ICSE Class 10. So in this part we'll be talking about expectations of stakeholders. In the last video we studied about what are stakeholders, different types of stakeholders. Today we'll be talking about their expectations. What do they expect? So we'll be talking about expectations of all these stakeholders, say employer, employees, suppliers, creditors of financial institutions, society or general public, and associates or competitors. So let's start with employer. So these are the different expectations of employers. There will be 7 points. You'll have to elaborate each point like this. So how do we learn? Okay. So make some poem or something like this. Just profit ka PG, ML. Okay. Expectations from suppliers, expectations from employees, expectations from government, and expectations from creditors. So try to make some poem or something out of it so that you know the first letter of all of these 7 points, and it is easier for you to write the exact heading. Okay. So employer, we know the one who employs people. He's a stakeholder. So his first expectations is profit. Now, profit is the main goal of any business owner or manager, and it is the reward for the entrepreneur's efforts, whatever efforts he is putting. Profit is the main reward. Every owner aims to run a business successfully and earn profit. So, profit is the first expectation. Second expectation is growth. Employers aim for business growth and success. Growth means expanding in all the areas over time. Now, how can it be achieved? It can be achieved by increasing the market share, adding more products, expanding to new markets, reducing the cost, and boosting the productivity, increasing the productivity. So students, please make these notes. These are amazing notes. huh? And it becomes easier for you to revise from these notes and write this as it is. So in points, if you write, the examiner will be forced to give you good marks, right? So for growth, what I've written, employers aim for business growth and success. Growth means not only going in one direction, it means expanding in all the areas over time. And how it can be achieved? Increasing market share. Market में अपना share increase कर लो, more products बनाओ, नए नए मार्केट में अलग अलग जगह जाके उसको बेचो, एक्सपैंड करो, कॉस्ट को कोशिश करो रिड्यूस करने की, और प्रोडक्टिविटी बूस्ट करो जिससे कि ग्रोथ मिलेगी. नेक्स्ट, मार्केट लीडरशिप. Employers also want market leadership. They aim to become market leaders. So achieving this requires innovation. इसको अचीव करने के लिए इनोवेशन करते रहना पड़ेगा. इनोवेशन कैन बी इन एरियाज लाइक एडवर्टाइजिंग, फाइनेंस और प्रोडक्ट्स. इन तीनों एरियाज में अगर आप इनोवेशन करोगे तो आप मार्केट लीडर बनोगे. Now, expectations from suppliers. Employees expect something from suppliers as well. What are their expectations? See, owners and managers expect regular supply of goods from suppliers. What they expect? Regular supply. Second, so this ensures the production process runs smoothly. If there is a regular supply, then the production process will run smoothly. They expect reasonable prices from the suppliers. First, they want regular supply so that the process is smooth. Then they expect reasonable prices from the supplier, and they also prefer easy credit terms for the purchase. Okay, so when they are purchasing something, if the credit terms are easy, it becomes easier for them. Those three main things: regular supply, okay, reasonable prices from the suppliers, and easy credit terms for purchases. Now they also expect from employees. So employers expect employees to be loyal and keep the organization secret safe. They want that their employees should be very loyal and they should keep the organization secret safe with them. Employers expect employees to work seriously and devote themselves in exchange for salary and benefits. So since the employer is giving them salary and another benefits, what does he expect from the employees? First, they should be loyal, they should keep the organization secret safe with them. Second, they should work seriously and devote themselves
to the company, right? Next. Now, employers also expects from government. What is it expecting from government? Employers or owners and managers expect government policies to support business. They want the government to come up with such policies so as their business is supported. They want protection from domestic industries through, how do they want protection? Through loans and through subsidized technology imports. If they are importing some technology from outside, okay, they should be able to do it at a subsidized rate. So government can help in that. So this helps in competing with the foreign companies, and employers also expect fair taxation policies that are not too harsh. So what is it expecting from the government? It is expecting good policies to be made. They want loans, they want subsidized technology imports and fair taxation policies. The policies should be fair. Now, what do they expect from creditors? You all know what are creditors. I have explained this in the last video very well. The owners and managers expect creditors and the financial institution to offer loans at fair interest rate. They are creditor कौन होते हैं जो पैसा देते हैं. तो जो एम्प्लॉयर्स या जो मैनेजर्स है वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्रेडिटर उनको लोन दे कम इंटरेस्ट रेट पे या फेयर इंटरेस्ट रेट पर और उनका एडवांटेज ना उठाए. क्रेडिटर शुड नॉट टेक एडवांटेज ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ कैश फ्लो क्राइसिस. जब भी उनके पास कैश फ्लो का क्राइसिस हो तब क्रेडिटर उसका अनड्यू एडवांटेज ना उठाए. यही एक्सपेक्ट करते हैं. सो हियर वी फिनिश द एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉयर्स. अब हम कर रहे हैं एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉइज. जो वहां काम करते हैं उस कंपनी में उनके क्या एक्सपेक्टेशंस है? फेयर वेजेस, उनकी सैलरी फेयर होनी चाहिए. गुड वर्किंग कंडीशंस, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. आप शायद तो एक ही वर्ड याद कर सकते हैं जैसे वेजेस, वर्किंग कंडीशंस, है ना, डब्ल्यू कंडीशंस लिख सकते हो. ऐसे किसी तरीके से पोयम या गाना बना के आप ये सभी पॉइंट्स याद करें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. There are 9 points. Okay, so let's talk about each of these expectations of employees. First is fair wages. सैलरी, ये जो कंपनसेशन उनको मिलता है वो फेयर होना चाहिए. एम्प्लॉयज एक्सपेक्ट fair remuneration for their work. Use good words in your answer. Okay, fair remuneration. Now, inadequate salary, अगर सैलरी inadequate हुई, ढंग से नहीं हुई, तो inadequate salary और wages से क्या होता है? It impacts the employee efficiency, product quality and employee loyalty to the organization. ये 3 चीज इफेक्ट होती है. हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कैसे प्रोडक्ट क्वालिटी इफेक्ट होती है, राइट? तो उनका काम करने की एफिशिएंसी कम हो जाएगी. वो जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी क्योंकि जो एम्प्लॉय है वो ध्यान से काम नहीं कर रहा है, इंटरेस्ट से काम नहीं कर रहा है. अगर उसकी सैलरी कम है तो एम्प्लॉय की लॉयल्टी टू द ऑर्गेनाइजेशन भी कम हो जाएगी, राइट? सो लो रिम्यूनरेशन, अगर हम कम पैसा दे रहे हैं उसको तो इट कैन लीड टू एम्प्लॉयज लीविंग फॉर बेटर पेइंग अपॉर्चुनिटीज. अगर कहीं और उसको अच्छी सैलरी मिल रही है तो वो लीव कर देगा आपकी कंपनी को. reduced job continuity in the organization. In the organization people will not continue for long. People will keep on joining and keep on leaving the company, right? So fair wages expect करते हैं employees. Now good working conditions. तो पहला तो है फेयर वेजेस हो गया, दूसरा है गुड वर्किंग कंडीशन. वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए. एम्प्लॉयज एक्सपेक्ट प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस टू मैक्सिमाइज देयर पोटेंशियल. ओके, उनका पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर पाए उसके लिए क्या चाहिए? प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, लाइक अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट such as fans or coolers increases the efficiency. Then basic facilities like seating, canteen, drinking water should be provided to them. Also, immediate and proper treatment should be available during accidents. If suppose there is an accident, then what does the employees need? They want that there should be proper and immediate treatment given to them. Next, organizational culture.
they want the organizational culture to be good. Employees expect a friendly and a supportive organizational culture. ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग होते हैं वो उनको फ्रेंडली और सपोर्टिव चाहिए, ठीक है। बॉस सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स, बॉस और उसका जो सबऑर्डिनेट है, ठीक है, उसके अंडर जो काम करता है, उसके रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए? इट शुड नॉट बी ऑटोक्रेटिक और फोर्स्ड। कोई चीज उसको फोर्स से या ना उस ऑटोक्रेटिक मतलब वो खुद का एक जने का ही रूल चल रहा है और वो उसको मनवा रहा है। तो द रिलेशनशिप बिटवीन द बॉस एंड सबऑर्डिनेट शुड नॉट बी ऑटोक्रेटिक, एक ही जना बोले जा रहा है कि आप ऐसा करो ऐसा ऐसा करो, और फोर्स्ड भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो इम्पोज्ड अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी जो अपने आप को उस पर इम्पोज कर देती है, इट लीड्स टू unwillingness to work. Now, people will not work, they will not be willing to work. This affects the efficiency and work quality. तो फिर से हम रिवाइज करते हैं। एम्प्लॉयज क्या एक्सपेक्ट करते हैं? फ्रेंडली और सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एक्सपेक्ट करते हैं। और बॉस और सबऑर्डिनेट का जो रिलेशनशिप होता है वो फोर्स्ड या ऑटोक्रेटिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अथॉरिटी इंपोज करोगे आप सामने वाले पे तो उससे काम करने की इच्छा नहीं होगी और उससे एफिशिएंसी और वर्क क्वालिटी कम हो जाएगी। देन जो भी जॉब करते हैं वहाँ, उनको उनकी इच्छा होती है, दे वांट कि वो हम मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करें, राइट। सो एम्प्लॉयज एक्सपेक्ट देयर डिमांड्स टू बी टेकन सीरियसली। एक तो उनकी डिमांड को ध्यान से सुनना चाहिए, डिमांड्स को सीरियसली लेना चाहिए मैनेजमेंट को, एंड दे वांट अ रिप्रेजेंटेटिव in top management to communicate their demands to the board of directors. So how do they want to participate in management? First, वो चाहते हैं कि उनकी डिमांड्स को सीरियसली लिया जाए। दूसरा, वो चाहते हैं कि उनमें से ही कोई एक रिप्रेजेंटेटिव हो टॉप मैनेजमेंट में, ताकि वो अपनी डिमांड्स उनको कम्युनिकेट कर सके। किनको कम्युनिकेट कर सके? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, राइट। सो दैट इज देयर एक्सपेक्टेशन। देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, राइट। एम्प्लॉयज जो होते हैं, दे डिसलाइक बीइंग स्टक इन द सेम पोजीशन इनडेफिनेटली। एक ही जगह एक ही काम करते रहना पसंद नहीं है किसी को भी। दे एस्पायर टू मूव टू हायर पोजीशन। उनकी क्या एस्पिरेशंस होती है? कि वो हायर पोजीशंस पे जाए, which requires proper training. So they aspire to move to higher positions requiring proper training. Employees expect the organization to address this need through training and development programs. तो उनकी ये जो नीड है, क्या नीड है? कि उनको हायर पोजीशन पे जाना है, तो उनकी नीड को एड्रेस करना चाहिए ना ऑर्गेनाइजेशन को। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए, अलग अलग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स देने चाहिए। सो दे वांट दिस। दे ऑल्सो एंटिसिपेट, वो चाहते हैं कि उनको रिसीव हो, क्या रिसीव हो? फेयर एंड टाइमली प्रमोशन। दे एंटिसिपेट, उनकी चाहत होती है या वेट कर रहे होते हैं उस चीज का, क्या चीज का? टू रिसीव फेयर एंड टाइमली प्रमोशन। Just reduce the volume of my phone. Also, I would like you all to switch off or reduce your phone's volume when you are studying, because it brings in a lot of distractions. Let's go ahead. Then retirement benefits. The the employees want retirement benefits. They expect the financial security after retirement through pension, provident fund, and gratuity. Okay. They seek sufficient income to live comfortably post retirement. So after they retire, they want कि हमारे पास sufficient income हो. In case of premature death, अगर जल्दी डेथ हो जाती है किसी एम्प्लॉय की, देन दे एक्सपेक्ट कंपनसेटरी जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर देयर डिपेंडेंट्स। उनके जो डिपेंडेंट्स होते हैं, मे बी उनकी वाइफ या बच्चे कोई है बड़े, तो वो अगर उनकी जल्दी डेथ हो गई कंपनी में, तो वो चाहते हैं कि हमारी जगह जॉब अपॉर्चुनिटी मेरे डिपेंडेंट्स को, जो मुझ पर डिपेंड कर रहे हैं, उनको मिल जाए, मेरी जॉब उनको मिले। दिस ensures the deceased employee's family does not face financial hardship. इससे क्या इंश्योर होता है? कि जो इंसान मर गया है, ओके, उसकी फैमिली को फाइनेंशियल हार्डशिप्स ना फेस करनी पड़े। तो ये दो चीजें हैं। पहला तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी मांगता है आफ्टर रिटायरमेंट थ्रू पेंशंस, प्रोविडेंट फंड्स एंड ग्रेजुटी। देन in case of premature death, they expect the compensatory job opportunities for their dependents. ग्रेवाइंसेस अगर कोई है, सेटलमेंट ऑफ ग्रेवाइंसेस। ग्रेवाइंसेस मतलब अगर कोई कंप्लेन्स है, किसी चीज की दुख है या कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उसका सेटलमेंट अच्छी तरीके से हो। सो ग्रेवाइंसेस रिफर्स टू
causes for complaints or annoyance. So employees expect grievances to be addressed promptly and sincerely. ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी grievances हो उनको तुरंत एड्रेस किया जाए, प्रॉम्प्टली एड्रेस किया जाए और सिंसियरली एड्रेस किया जाए, उनका सॉल्यूशन निकाला जाए. They prefer resolution at the lowest possible level to avoid delays. छोटे लेवल पे ही उनकी जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, रिजॉल्व हो जाए, ऊपर तक चीजों एक्सकेलेट ना हो, आगे तक लान ले जाए जिसकी वजह से डिले ना हो. तो जल्दी जल्दी उनकी प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन उनको चाहिए. क्विक एंड इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ ग्रीवांसेस इज एंटिसिपेटेड. एंटिसिपेटेड मतलब वो चाहते हैं, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. ओके, किसका? क्विक एंड इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ ग्रीवांसेस. Then they want bonus, rewards, and incentives. Obviously, employees expect that any extra work will be properly rewarded by the organization. अगर एक्स्ट्रा टाइम करते हैं वो, जो उनका जॉब आवर्स से ज़्यादा काम करते हैं या कहीं बाहर जाते हैं, तो एक्स्ट्रा वर्क के लिए उनको एक्स्ट्रा पैसे मिलने चाहिए. एडिशनली, इफ द ऑर्गेनाइजेशन अर्न सम एक्स्ट्रा प्रॉफिट, अगर लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छा फायदा हुआ है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला है जो पहले से, तो इट शुड बी शेयर्ड विद देम एज अ बोनस. तो उनको बोनस मिलना चाहिए जिनकी वजह से एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हुआ है. अंडरस्टूड? सो बोनस, रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स आर ऑल्सो एंटिसिपेटेड. So now we did expectations of employees and expectations of employers. Now we are doing expectations of suppliers. Supplier जो है, जो raw material provide करते हैं या services provide करते हैं बाहर से, उनकी क्या expectations होती है? उनकी expectations होती है purchase on reasonable terms, fair prices, healthy competition होना चाहिए, reasonable time में वो deliver कर सके, transparency और long term relationship. These are the expectations of suppliers. Let's look at them. तो पहला क्या था? Purchase on reasonable terms. Suppliers expect that the organization is going to make purchases from them on reasonable terms. That is, if the supplier is new to the organization, he would not be exploited in terms of prices. तो ये चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो उनसे परचेस कर रही है वो रीजनेबल टर्म्स से उस पर परचेस करे. अगर वो नया है तो उसको एक्सप्लॉइट ना करे कि तुम तो अभी अभी मार्केट में नए आए हो, हम तो पुराने उनसे लेते थे, तो आप कम रेट में दो हमको. ऐसा नहीं करना चाहिए. सो दे एक्सपेक्ट कि ऑर्गेनाइजेशन उनसे रीजनेबल टर्म्स पे परचेस करे. और सेकेंड है टाइम. प्रॉपर टाइम विल बी गिवन टू हिम टू डिलीवर द गुड्स. जल्दी जल्दी ना मचाए. अगर उसने बोला है कि मैं इतने टाइम में डिलीवर करूंगा तो इतना टाइम उनको मिलना चाहिए. फेवरेबल ट्रीटमेंट विल बी गिवन टू द सप्लायर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शॉर्टेजेस. जब कभी कभी होता है कि शॉर्टेज है, उस चीज का शॉर्टेज ही है, तो वो बेचारा क्या करेगा सप्लायर? तो उनको फेवरेबल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए एट द पीरियड्स ऑफ शॉर्टेजेस. So these are the three things: purchase on reasonable terms, a proper time, and favorable treatment. Now fair prices. Supplier क्या चाहता है, सेलर क्या चाहता है? They expect to receive कॉस्ट प्लस प्रॉफिट फ्रॉम द बायर्स. जो उनसे खरीद रहे, कॉस्ट तो मिले क्योंकि उसने भी कहीं से लिया है ना, वो चीज बनाने में भी उसका कुछ कॉस्ट लगा है, तो कॉस्ट तो मिले, उसके साथ साथ प्रॉफिट भी मिले. सप्लायर्स एंटिसिपेट फेयर प्राइसिंग फॉर द गुड्स दैट दे प्रोवाइड. जो गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी सही कीमत उनको मिले. दे एक्सपेक्ट ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड एक्सप्लॉइटिंग मार्केट कॉम्पिटिशन अमॉन्ग सप्लायर्स. तो ये चाहते हैं कि मार्केट कंपटीशन की वजह से सप्लायर उनको एक्सप्लॉइट ना करे, कि मार्केट में जाओ तुम प्राइस कम नहीं कर रहे हो, मार्केट में और भी बहुत लोग हैं, हम उनसे ले लेंगे, ये बोल के उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए. फेयर ट्रीटमेंट एंड एथिकल प्रैक्टिसेस आर देयर की एक्सपेक्टेशन. उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है? उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट किया जाए और एथिकल प्रैक्टिस की जाए. प्रमोट हेल्दी कंपटीशन. ठीक है. अब देखो बच्चों, बिजनेसमैन तो क्या है, मेन गोल क्या है बिजनेसमैन का? अर्न प्रॉफिट, राइट? तो प्रॉफिट कैसे इंक्रीज हो सकता है? बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट और इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस. बट इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस इज नॉट फिजिबल इन कॉम्पिटिटिव मार्केट. मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव है कि मैं प्राइस बढ़ा दूंगा तो कोई खरीदेगा नहीं. तो बिजनेसमैन क्या करते हैं? बिजनेसमैन एम टू परचेस गुड्स एट लोएस्ट प्राइस. तो इन दोनों में से सेलिंग प्राइस तो इंक्रीज नहीं कर सकते, तो वो क्या कर सकते हैं? कॉस्ट रिड्यूस कर ले. सो टू अचीव दिस दे नेगोशिएट विथ मल्टीपल सप्लायर. वो क्या करते हैं? बहुत सारे सप्लायर के साथ नेगोशिएट करते हैं.
They choose suppliers offering the best quality and quantity at the lowest price with reasonable terms. Then they choose such suppliers who are giving best quality and quantity at the lowest price. Lowest price पे best दे रहे हैं और reasonable terms पे. But suppliers expect businesses too. So suppliers क्या चाहते हैं? Fair competition होना चाहिए. सिर्फ प्राइस नहीं देखनी चाहिए, क्वालिटी देखनी चाहिए, उनके टर्म्स भी देखने चाहिए. अवॉइड मिसलीडिंग सप्लायर्स फॉर पर्सनल गेन. ना कुछ कुछ सप्लायर्स क्या होते हैं, पैसा खिलाते हैं कि मेरा माल खरीद लो, राइट. तो वो मिसलीडिंग सप्लायर होते हैं. तो पर्सनल गेन के लिए बिजनेसमैन को चाहिए कि वो मिसलीडिंग सप्लायर को अवॉइड करे. तो सप्लायर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए और मिसलीडिंग सप्लायर्स को अवॉइड करना चाहिए. वो ये चाहते हैं. वो क्या चाहते हैं? रीजनेबल टाइम. हमने पहले भी पढ़ा है. ऑर्डर प्रोसेसिंग टेक्स टाइम फॉर फिनिशिंग, पैकिंग एंड डिलीवरी, राइट. So during shortages, suppliers may need extra time to arrange goods, and suppliers expect organizations to allow reasonable time for fulfilling the orders. Then they want transparency. Suppliers expect clear terms in dealings with the organization. तो clear terms के क्या क्या key aspects हो सकते हैं? पेमेंट टर्म क्लियर होनी चाहिए, डिलीवरी टाइमलाइन एकदम क्लियर बतानी चाहिए, क्वालिटी एंड क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स पहले से मेंशन्ड होने चाहिए, हैंडलिंग ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल्स के भी पहले से होना चाहिए कि अगर डिफेक्टिव मटेरियल है तो उसका क्या होगा, कौन पैसा भरेगा. ये सब चीज ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए. बिकॉज क्लैरिटी हेल्प्स अवॉइड डिस्प्यूट्स एट द पेमेंट टाइम, ताकि पेमेंट टाइम पे कोई भी डिस्प्यूट ना हो. That is why suppliers expect clear terms. They expect clear terms in dealing with the organization. So ये सब terms है, payment terms, delivery timelines, quality and quantity standard, and handling of difficult materials. Then long term relationship. They want कि एक बार ऑर्डर मिला वैसा नहीं, long term relationship होनी चाहिए. Suppliers seek long term relationship with the organization for sustained business. Sustained business मतलब ताकि उनका बिजनेस चलता रहे लंबे समय तक, सस्टेन रहे ना. मार्केट में रहने के लिए उनको क्या चाहिए कि लॉन्ग टर्म के लिए हमारा रिलेशनशिप हो जाए इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से. स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप से क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स हेल्प to avoid disputes over defective goods, financial matters and other issues. जब भी ये सब issues आ जाते हैं कि defective goods आ गया या financial matter कोई हो गया या कोई भी दूसरा issue आ गया, तो अगर relationship strong है ना तो ये सब dispute खत्म हो जाते हैं. वो बोलेगा अच्छा चलो डिफेक्टिव माल आ गया, रिलेशनशिप तो स्ट्रांग है अपना ना, तो मैं नया माल भिजवा देता हूँ, फिर से भिजवा देता हूँ, गिव मी सम टाइम. ठीक है. गुड रिलेशंस इंश्योर्स स्मूदर ऑपरेशंस एंड म्यूचुअल ट्रस्ट. सो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी वो सीख करते हैं. तो हमने ये क्या कर लिए, सभी एक्सपेक्टेशंस ऑफ सप्लायर्स. फिर से एक बार देख ले एक्सपेक्टेशंस ऑफ सप्लायर्स क्या क्या थे. परचेज ऑन रीजनेबल टर्म्स, फेयर प्राइजेस, प्रमोट हेल्दी कंपटीशन, रीजनेबल टाइम, ट्रांसपेरेंसी एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. So now let's talk about expectations of creditors or financial institutions. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, these are the 6 points of expectations of creditors. Undisputed mortgage property, proper utilization of debt, disclosure of financial positions, and so on. Let's talk about each of these points in detail. Undisputed mortgaged property. Now loans or credits are secured by organization's asset. Organization के पास जितने भी asset है ना, जैसे कोई प्रॉपर्टी है तो उससे उनको लोन्स और क्रेडिट मिलता है. तो जो भी लोन्स और क्रेडिट देने वाले होते हैं उनको सिक्योरिटी तो चाहिए ना. सो लोन्स और क्रेडिट are secured by what? Are secured by organization's assets. So creditors can sell pledged assets. इनको pledge asset क्यों कहा गया है? क्योंकि इन्होंने pledge किया है कि ये asset हमने तुम्हारे यहाँ mortgage रखे हैं. तो these assets that are pledged. So creditors can sell pledge assets if the loan is not repaid. अगर लोन नहीं repay किया है तो creditors जो भी asset की pledge ली है उन्होंने उसको sell कर सकते हैं. Creditors expect pledge assets to have clear ownership without disputes. तो जो भी इन्होंने ये प्रॉपर्टी रखी है लोन लेने के लिए, तो इस प्रॉपर्टी पे कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए. उनका क्लियर ओनरशिप होना चाहिए कि ये इसकी, ये ओन करता है इसको, या ये दो जने मिलके इसको ओन करते हैं. कोई भी डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए उस प्रॉपर्टी पे.
देन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ डेप्ट, क्रेडिटर्स एक्सपेक्ट करते हैं, क्रेडिटर्स एक्सपेक्ट दैट द डेप्ट्स टू बी यूज्ड फॉर द स्टेटेड पर्पस, उन्होंने जो हमसे पैसा लिया है उसको वो उसी पर्पस के लिए यूज किया करे जो कि उन्होंने कहा है हमें, जो कि बताया गया है, जो स्टेट किया गया है लोन लेते वक्त। मिसयूज ऑफ फंड्स फॉर अदर और पर्सनल पर्पसेस हार्म्स द बिजनेस, अगर उन्होंने मिस यूज किया, फंड तो ले लिया कि हमको बिजनेस में इस चीज में लगाना है, लेकिन पर्सनल पर्पस के लिए उसको यूज किया है तो बिजनेस को हार्म होता है। दिस मिस यूज कैन डिसरप्ट द रीपेमेंट शेड्यूल, और इसकी वजह से क्या होगा, रीपेमेंट का शेड्यूल डिसरप्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। डिलेड और disrupted repayments negatively affect creditors and financial institutions, अगर कंपनी ने उनको डिले कर दिया रीपेमेंट करने में या डिसरप्टेड रोक रोक के दिया, तो उससे क्रेडिटर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट नेगेटिवली अफेक्ट होते हैं। Sorry, I was feeling cold, so change the clothes. So proper utilization of debt I explained you. Then disclosure of factual financial position. Creditors expect organization to disclose true financial information. Creditors ये चाहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने उनसे लोन लिया है वो रियल हमको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करे, है ना, हमको कोई झूठी झूठी इंफॉर्मेशन ना बताए, उनकी कंपनी कितना प्रोग्रेस कर रही है, क्या है उसकी, और जो भी एसेट्स है, पेपर्स उनको सही बताए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उनको सही तरीके से बताए। फेक और वेग डॉक्यूमेंट्स शुड नॉट बी यूज्ड टू ऑब्टेन लोन्स और क्रेडिट्स, ठीक है, ये तो एकदम सिंपल है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड मस्ट बी रियल एंड अनमैनिपुलेटेड, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट किए गए हैं वो रियल होने चाहिए, मैनिपुलेट किए हुए नहीं होने चाहिए, फेक और वेग डॉक्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए लोन्स लेने के लिए। ओके, देन द क्रेडिटर्स वांट्स रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट, क्रेडिटर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं, दे एक्सपेक्ट टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट उनको टाइमली, टाइम टू टाइम पे कर दिया जाए। रेगुलर पेमेंट्स इंश्योर कंसिस्टेंट कैश इनफ्लोज, क्योंकि रेगुलर पेमेंट से क्या क्या इंश्योर, क्या श्योरिटी रहती है कि कंसिस्टेंट कैश इनफ्लो हो रहा है, एंड दिस हेल्प्स क्रेडिटर्स रोटेट द मनी फर्दर, तो यहाँ से जब इंस्टॉलमेंट आ रहा है तो क्रेडिटर दूसरी कंपनियों को भी दे सकते हैं ना, उसको रोटेट कर सकते हैं उस मनी को आगे। That is why they want regular payment of interest and installment. No indulgence in unsocial or illegal activities. Creditors and financial institutions expect ethical and legal behavior from the organization. वो organization से क्या expect कर रहे हैं कि वो ethical और legal behavior दिखाए, ठीक है। Engaging in illegal or unsocial activities harms the business. अगर वो businessman या वो कंपनी अनसोशल एक्टिविटी कर रहा है या इलीगल काम कर रहा है तो उस बिजनेस का तो नुकसान होगा ही, उसको क्रेडिट देने वाले या उनको लोन देने वाले लोगों का भी नुकसान होगा। सच एक्शंस नेगेटिवली अफेक्ट क्रेडिटर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि उनका भी नाम खराब होता है, उनको पेमेंट भी नहीं आएगा फिर। देन प्रॉपर कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड क्रेडिटर्स नीड अपडेट्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस फाइनल पोजीशन, उनको ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल जो पोजीशन है उस चीज का रेगुलर अपडेट मिलते रहना चाहिए। रेगुलर अपडेट से क्या होगा, दे हेल्प देम प्लान फ्यूचर क्रेडिट्स एंड रीपेमेंट्स, वो प्लान कर सकते हैं कि आगे इनको कितना फ्यूचर में क्रेडिट देना है या रीपेमेंट के टर्म्स चेंज करने हैं या नहीं करने हैं, ठीक है। दीज अपडेट्स शुड बी शेयर्ड पीरियोडिकली, तो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि ये सभी अपडेट्स पीरियोडिकली उनके साथ शेयर करते रहे। तो ये थे सब क्रेडिटर्स के एक्सपेक्टेशंस। अब हम कर रहे हैं एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी, यानी कि जनरल पब्लिक की क्या एक्सपेक्टेशंस होती है। फेयर प्राइसेस एक्सपेक्ट करता है जनरल लोग, रेगुलर सप्लाई मिलता जाए उनको प्रोडक्ट्स का, नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोटेक्टेड रहे, अवेयरनेस स्प्रेड करता रहे ऑर्गेनाइजेशन, फिर सोशल इंस्टीट्यूशन बनाता रहे, है ना, अनसोशल या इलीगल एक्टिविटी ना करे और रिसोर्स का ऑप्टिमम यूज करे, यही चाहती है सोसाइटी। तो सोसाइटी चाहती है सबसे पहले फेयर प्राइसेस। Society expects that the organization producing the same product will not make a pool and charge higher prices from the customer. वो चाहती है कि अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे, एक जैसा प्रोडक्ट है, दो तीन कंपनी बना रही है, तो
वो हायर प्राइजेस चार्ज ना करे उनसे, रेगुलर सप्लाई होता जाए। होर्डिंग ऑफ गुड्स लीड्स टू ब्लैक मार्केटिंग, ये तो आपको पता ही है कि क्या करते हैं बहुत से लोग, बहुत से प्रोड्यूसर्स चीजें होल्ड करके मतलब बचा के रखते हैं, है ना, जमा करके रखते हैं, बाहर मार्केट में नहीं आने देते, उसे कहते हैं ब्लैक मार्केटिंग। और फिर जब उसकी कमी खलने लगती है, लोगों को चाहिए वो चीज, है ना, तो उसका रेट बढ़ा देते हैं। दिस इज नोन एज होर्डिंग ऑफ गुड्स। सो होर्डिंग ऑफ गुड्स लीड्स टू ब्लैक मार्केटिंग। Thus public expects that goods will be supplied to them regularly and no artificial shortage will be created in the market। तो मैंने जैसा आपको बताया कि लोग होर्डिंग करके रहने देते हैं, मार्केट में नहीं आने देते हैं, तो उस चीज की शॉर्टेज हो जाती है मार्केट में, तो उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल शॉर्टेज। तो आर्टिफिशियल शॉर्टेज जब मार्केट में क्रिएट हो जाती है, तो लोगों को जब वो चीज़ चाहिए तो वो हायर प्राइसेस पे भी वो चीज़ को खरीदने को रेडी हो जाते हैं। तो पब्लिक ये चाहती है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो होर्डिंग ऑफ गुड्स ना करे, जब और रेगुलर सप्लाई करते रहे। देन दे वांट प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट ना। किसी भी कंपनी का मेन एम क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, है ना, मेन ऑब्जेक्टिव। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। बट पब्लिक क्या एक्सपेक्ट करती है? दैट ड्यूरिंग द अटेनमेंट ऑफ देयर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, कि ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अटेन करते करते ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करना है। किसको? नेचुरल एनवायरनमेंट को। Organizations do not destroy the natural environment and rather work for the protection of the environment। अगर आप ये पिक्चर देखेंगे, मैंने भी वैसा ही कुछ बताया है कि उसको रिसोर्सेस को निकाले ना, कंटिन्यूसली नेचर का ध्यान रखे। उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट, तो उसको रीच करने के लिए, उसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट डिस्ट्रॉय द नेचुरल एनवायरमेंट, rather they should work for the protection of that environment। Then spreading awareness. Society expects that the organization should spread awareness about its product among public and also inform public about the advantages and disadvantages of using that particular product. They should also inform public for whom their product is useful and for whom it is not. Sometimes some products are not advisable for maybe for example a lactating mother or a pregnant woman ना। So the company should spread awareness कि ये चीज इन लोगों के लिए बनाई गई है, ये चीज इन लोगों के लिए नहीं बनाई गई है। They should not be consuming, children should not be consuming this product that we have made। Okay, so this product is made particularly for adults, this product is made for children, this product is made for these people। So वो इंफॉर्मेशन पब्लिक में देते जाए और उसको एडवांटेजेस उस प्रोडक्ट को यूज करने के और साथ ही डिसएडवांटेजेस के बारे में भी लोगों को बताए। कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन ना, इफ आई टेल यू अबाउट दिस, आपने देखा होगा सिगरेट के पैकेट पे भी उस प्रिंट किया होता है कि दिस इज हार्मफुल, है ना। तो सो अवेयरनेस उनको दिखानी पड़ेगी, सब इतना बड़ा बड़ा बता रखा होता है कि ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, राइट। तो अवेयरनेस तो उनको देनी पड़ेगी। Then construction of social institutions. Although no profit maximization is the primary objective of any business organization, but the society expects that the organizations who are earning heavy profits will construct social institutions such as old age homes, orphanages and rehabilitation centers for the use of public। तो वैसे तो किसी भी कंपनी का मेन एम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लेकिन पब्लिक क्या चाहती है कि जो कंपनियां बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, हमसे ही कमा रही है, पब्लिक से ही कमा रही है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हैवी प्रॉफिट कमा रहे हैं उनको सोशल इंस्टीट्यूशंस खोलने चाहिए लोगों के लिए, जैसे कि ओल्ड एज होम है, ऑर्फनेजेस है, एक्सेट्रा। नो इंडल्जेंस इन अनसोशल और इलीगल एक्टिविटीज। सोसाइटी ये चाहती है कि ऐसे कोई प्रोडक्ट ना बने या ऐसी कोई चीज ना हो जिससे हमें नुकसान हो, है ना। सो ऑन सोशल और इलीगल प्रोडक्ट्स एंड एक्टिविटीज विल हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑल, है ना। ऑल द सोशल और इलीगल प्रोडक्ट्स एंड एक्टिविटीज विल हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ नेशन and its citizen। So society expects that business organizations do not manufacture such products which are harmful for the society, and they should refrain from engaging themselves
in such activities which are detrimental to the health and image of society. For example, drug trafficking, है ना, ऐसी चीजें ना बनाई जाए और ना प्रमोट की जाए, और दे उन लोगों को जो ऑर्गेनाइजेशन है, दे शुड ऑल्सो नॉट गेट एंगेज्ड इन दीज एक्टिविटीज जिसकी वजह से सोसाइटी की हेल्थ और इमेज खराब हो, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, जितने रिसोर्सेज हमारे पास है उसको अच्छे से टेक्नोलॉजी यूज करके यूज किया जाए, रिसर्च को डेवलप किया जाए ताकि हमें गुड्स क्वालिटी के और चीपर रेट्स में मिले। सो सोसाइटी एक्सपेक्ट्स दैट organization is going to make optimum use of resources and will promote the research environment, रिसर्च की जाए, ठीक है, so that better quality goods at cheaper rates will be made available to the public। बच्चों जब भी मैं पढ़ा रही हूँ सुनो भी, देखो भी, पिक्चर्स भी देखो जो मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं, ठीक है, इन पिक्चर्स से भी आपको काफी कुछ आइडिया आ जाएगा जिससे आप आंसर अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। मेरा मेन एम है कि आपको सब पॉइंट्स याद होने चाहिए, पॉइंटर्स याद होने चाहिए, वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो याद होने चाहिए। सो वॉच द वीडियो वंस और ट्वाइस, मेक नोट्स, ओके, सी द पिक्चर्स दैट आर देयर, ये ऐसे ही नहीं डाले हैं मैंने, ओके, बहुत थिंकिंग के बाद ये चीजें डाली है ताकि आपको स्लाइड पे जो है, अगर आपको पिक्चर भी याद आ गया तो यू विल बी एबल टू राइट, राइट। So now these were the expectations of society. Now we will talk about expectations of government. Government की क्या expectations है? तो गवर्नमेंट की ये 5 एक्सपेक्टेशंस है, आपको इसकी पॉइंट्स की हेडिंग्स एटलीस्ट याद होनी चाहिए, बाकी उनके अंदर का मैटर मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ, आप अपनी लैंग्वेज में कीवर्ड्स यूज करते हुए लिख सकते हैं। तो गवर्नमेंट का पहला एक्सपेक्टेशन है रेगुलर पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज। सो व्हेन यू जनरेट रेवेन्यू, सॉरी, revenue generated by the government in form of taxes and duties is spent by it on the social welfare and defense of the country। जो भी गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेता है ना, टैक्स और ड्यूटीज लेता है, वो गवर्नमेंट उससे जो पैसा कमाते हैं रेवेन्यू कहलाता है ना। सो रेवेन्यू जनरेटेड बाय गवर्नमेंट इन फॉर्म्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज इज स्पेंट ऑन, वो कहाँ स्पेंड करते हैं, सोशल वेलफेयर पे और कंट्री की डिफेंस पे। Thus, government expects that business organizations pay the taxes and duties regularly and do not try to evade them, उनसे बचने की कोशिश ना करे। तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको बराबर से टैक्सेस और ड्यूटीज रेगुलरली देते रहे, टैक्सेस देने से ना बचे, क्योंकि उसी से गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर और डिफेंस ऑफ द कंट्री को संभालती है। नो ब्लैक मार्केटिंग, गवर्नमेंट चाहती है कि होर्डिंग ना हो। अभी मैंने आपको ब्लैक मार्केटिंग बताया था, फोटो से देखो एकदम अच्छे से क्लियरली बता रखा है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जमा करके रख देती है और डिक्लेयर कर देती है कि आउट ऑफ स्टॉक है ना। तो सोसाइटी में क्या हो जाता है, इसकी स्कैरसिटी हो जाती है जिससे वो हाई कीमत पे उसको बेचते हैं। तो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि ब्लैक मार्केटिंग ना हो। Many organizations stock the goods and do not supply to the public at normal prices, due to which an artificial shortage is created in the market. These goods are supplied to the customers at higher prices through black markets, which is an illegal activity. Thus, government expects the organizations do not themselves indulge in such black marketing of goods। तो गवर्नमेंट का क्या एक्सपेक्टेशन है कि ऑर्गेनाइजेशंस इंडल्ज ना करे ऐसी ब्लैक मार्केटिंग ऑफ गुड्स में। नो मोनोपोली, गवर्नमेंट डजंट वांट कि कोई एक ही कंपनी अपनी मोनोपोली बना ले। गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स दैट एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस शुड नॉट गेन मोनोपोली एंड एक्सप्लॉइट द कस्टमर, क्योंकि अगर एक बार उनकी मोनोपोली हो जाएगी कि भाई ये प्रोडक्ट तो हम ही बनाते हैं, हम ही बेस्ट बनाते हैं, और उनकी मोनोपोली हो गई, उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि बाकी सब लोग नहीं बना पा रहे वो प्रोडक्ट, तो वो क्या करेगा, पब्लिक को एक्सप्लॉइट करेगा। तो गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है, ठीक है। Although government has established Competition Commission of India to check unfair and monopolistic practices, ठीक है, it expects the organizations not to concentrate economic powers which are detrimental to social interest। तो although Competition Commission of India बनाया गया है,
ठीक है, इससे अनफेयर और मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस, दिस इज नॉट ट्रेड प्रैक्टिसेस जो है बंद हो गई है ना। तो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इकोनॉमिक पावर पे कंसंट्रेट ना करे, मतलब अपने आप को ही अमीर बनाने पे ना कोशिश करें, क्योंकि ये सोशल इंटरेस्ट के लिए अच्छा नहीं है ना। ट्रेड रिलेशन विद एनिमी कंट्रीज, तो क्या एक्सपेक्ट करती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट एंगेज themselves in trade with enemy countries through any channel। पिक्चर से एकदम क्लियर है ना। सपोर्ट एट द टाइम ऑफ कैलमिटीज, गवर्नमेंट सपोर्ट चाहती है ऑर्गेनाइजेशन से एट द टाइम ऑफ कैलमिटीज। सो एट द टाइम ऑफ नेचुरल कैलमिटीज, गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस टू जॉइन हैंड्स विथ इट, गवर्नमेंट की हेल्प करे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस एंड हेल्प द रेसिडेंट्स ऑफ द अफेक्टेड एरिया टू ओवरकम द डिजास्टर। अब हम लास्ट बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेशंस ऑफ एसोसिएट्स और कॉम्पिटिटर्स, ये लास्ट है, ठीक है। जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं या जो एसोसिएट्स होते हैं उनके क्या एक्सपेक्टेशन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से? तो जो आइडियल एसोसिएट होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग प्राइस, क्वालिटी एंड सर्विसेज। तो कॉम्पिटिटर्स होते हैं ना, वो चाहते हैं कि जैसे कि दो इंसान हैं, दोनों इंसान वही प्रोडक्ट बना रहा है, तो जो कॉम्पिटिटर है वो चाहेगा कि फेयर प्राइसेस हो, मतलब मेरी 2 रुपए है तो इसके 3 रुपए या 1 रुपए, बट ज्यादा डिफरेंस ना हो, है ना। तो फेयर प्रैक्टिस हो ताकि उसको भारी नुकसान ना उठाना पड़े। तो प्राइस में, क्वालिटी में और सर्विस में फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्सपेक्ट कर रहा है वो अपने कॉम्पिटिटर से। एन एटमोस्फियर ऑफ हेल्दी कंपटीशन एंड एथिकल बिहेवियर, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि हेल्दी कंपटीशन हो, एथिकल बिहेवियर हो उसके कॉम्पिटिटर्स का। कोऑपरेशन अमंग कॉम्पिटिटर्स टू इंश्योर द ग्रोथ ऑफ द एंटायर इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए वो जितने भी कॉम्पिटिटर्स है वो जो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो एक दूसरे का कोऑपरेशन करें। फिर है रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब जिस व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जैसे कोई पर्टिकुलर लोगो है जिसपे उनका राइट्स है, कॉपी राइट है, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो वो ही लोगो वो यूज ना करे या उसको उसको वो रिस्पेक्ट दे कि हम उस लोगों से मिलता जुलता कुछ ना बनाए, है ना। अदरवाइज लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, ब्रांड और नकली ब्रांड में। सो कॉम्पिटिटर्स या एसोसिएट्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक तो फेयर फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रिगार्डिंग प्राइस, क्वालिटी एंड सर्विस। सेकंड, एथिकल बिहेवियर एंड हेल्दी कंपटीशन। कोऑपरेशन कोऑपरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। So these were the expectations of different stakeholders. I hope this was very beneficial to you. Please make proper notes and learn very nicely. Learn the headings and you'll be able to write if you have seen my video once or twice. See it multiple times. Capture the images that I have given and obviously you will score very good. So thank you once again and keep the learning always on Zenith Academy Online. Do not forget to subscribe and please tap on the bell icon to receive all the notifications. And do share our videos with all your friends. Bye bye students.